there, folks. So an interesting take coming out on the election percentage, voting percentage in Gujarat. Extremely low in cities, high in rural centers. Rural centers generally mean if it's high, it's advantage Congress because that's where they've got all the seats. And low in urban centers could mean one of the two things: advantage BJP, disadvantage BJP. Advantage BJP if it's the floating voter that stayed at home, and disadvantage if their own karyakarta have stayed at home. And in that, Dinesh Voraji has had an extremely, very, very interesting and incredible analysis that he's done. And you've got to hear this, right? As we take it further, this is another point of view. He says that he's analyzed these 89 seats between 2012 and 2017. The vote percentage, hear this, went down from 71.4 to 66% between 2012 and 2017. What that did, that 4% drop in voting percentage turnout, reduced the number of seats for the BJP, remember this, from 41 to 38, while it increased the seats for the Congress from 22 to 38, right? 48 to 41 and 22 to 30. What he says is, it seems that every 1% loss or drop in voting percentage has 3 seats lost by the BJP and approximately 4 seats gained by the Congress. Now, if you look at what's happened in this bet, while it says it's a 6 to 7% drop, actually in the urban centers, it's a lot more. So you're really maybe looking at 21 seats lost by the BJP. The question then is going to be, where in the hell will they make up, right? And that's why you suddenly see you have this IT department rates diamond firms, realtors in Surat. And I'm told why is because Saurashtra and Surat are very well are like peas in the same pot, because a lot of people from Saurashtra went to Surat to work in the 80s and settled there, and they're really extremely upset, right? And these rates are a message of disappointment or warning being sent by the duo from the center that, hey, you better watch out, or we're coming for you if the things don't go the same way as they did if they don't go for you don't get your workers out to vote for the BJP folks. Cheers. सबसे बड़ा ड्रग्स का माफिया, अब उसको मैं बाद में जोड़ने जा रहा हूं इलेक्शन फंड से, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा ड्रग्स का माफिया, नकली शराब का माफिया। और मेरे प्रोग्राम आपके चैनल पे आए हुए हैं कि जब ड्रग्स का माफिया एक्टिवेट होता है तो साथ में हवाला करेंसी का माफिया भी एक्टिवेट हो जाता है और सोने का माफिया भी एक्टिवेट होता है। तो इस टाइम जो डेन ऑफ द माफिया है वो गुजरात है, और 173 करोड़ में से अगर 164 करोड़ 94% फंड अगर एक पार्टी को जाते हैं तो आप सोचिएगा कि राजनीति का भी माफियाकरण हुआ है गुजरात के अंदर। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। दूसरी बात यह है कि मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है, मैंने 2012 और 2017 के चुनावों को बहुत माइन्यूटली चेक किया, एग्जामिन किया, और कुछ फाइंडिंग्स है, मेरी फाइंडिंग्स नहीं, ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा इन्हीं 89 सीटों का, कि उनमें क्या बदलाव आते हैं। हालांकि उसमें तीसरा खिलाड़ी भी आता है, लेकिन सौराष्ट्र के मामले में वो इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है कि सुदान गढ़वी को छोड़ दिया जाए। तो वो ये था कि 2012 में जो हमारा वोटिंग था 71.4% था, और जो 2017 में जो वोटिंग था जो 67.4%, सिर्फ 4% का फर्क था, 4% डाउन होता है। बीजेपी की सीटें इस 4% वोटिंग के डाउन होने से 68 से घटकर 41 होती हैं, और कांग्रेस की सीटें 22 से बढ़कर 38 होती हैं। ये ऑब्जर्वेशन का अब मेन हिस्सा, हर 1% जो डाउन होता है वोटिंग के अंदर, बीजेपी 3 सीटें गवा देती है इस 89 सीटों में, और हर 1% के डाउन होने पर कांग्रेस 4 सीटें गेन कर लेती है। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये इन 89 सीटों का आकलन है कि विद एवरी 1% डाउन इन द वोटिंग बीजेपी लूजेस 3 सीट्स एंड कांग्रेस गेन्स 4 सीट्स। तो इसलिए वो 22 से 38 पे पहुंचते हैं, और ये 68 से 41 पे। और इस बार सौराष्ट्र का जो डाउनफॉल है वो सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ा है, वो 7% नहीं है, उससे भी बड़ा है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां पे साउथ गुजरात को मिलाकर आप 60% की बात कर रहे हैं, साउथ गुजरात में वोटिंग ज्यादा हुई है, और खासतौर ट्राइबल एरिया में भी ज्यादा हुई है। तो ये एक मेजर ऑब्जर्वेशन था इसके अंदर। And there is a gentleman, Mr. Jani, who is reporting from Gujarat. He has a very interesting take that then explains whether it's the floating voter or whether it is the disgruntled BJP guy. He says that basically he got a call from a really high up relative of a BJP कार्यकर्ता in Kutch, who told him that बहुत खेला हो गया है, क्योंकि हमारे लोग तो जाने से इनकार कर रहे हैं, कहते हैं हम जा रहे हैं उनके घर और वो आने को तैयार ही नहीं, कहते हैं हमने वोट बीजेपी को देना ही नहीं। The other very important point he pointed out is that in the previous elections, what would happen, the trend of the last 2 hours was that the RSS pracharaks, the VHP pracharaks would go out door to door, pick up all the folks who were BJP guys, carry them in the cars for voting, and you almost in the last 2 hours had a voting percentage of 20%. This time there was none. So basically what that ties up is that the guys who are not come out to vote and responsible for this turn down of voting percentage is not the floating voter as much as it is the disgruntled BJP guy. So it is disadvantage the BJP. The other thing that I must tell you is this, that, and I'll talk about it a little later, and this again Dinesh Vora, he really has a very interesting take. He says,
there's a drug market mafia in Gujarat, and we know that there was a $3 billion catch in the Adani ports, and we don't know what happened. And we all know, anybody who's watched these shows, shows called Narcos, El Chapo, you know that the entire business of drugs is extremely well oiled, and everybody at every point is taken care of and well paid. To have a $3 billion loss of drugs tells me that there's some real big locha. And the second problem is that every time there's such a big loss, there's a huge retribution. Where's the retribution? Where are the drugs? My view is that these drugs may have found themselves their way back to where they were going, and that's why there's nothing left here. And so he talks about the drug mafia, then he talks about the illicit liquor mafia, and he says both these mafias then turn into the Hawala mafia critically and the gold smuggling mafia. I'll take it a little bit further. This system also creates money for terrorism. So they're all linked. Anything to do with Hawala, illegality, they're all folks linked. So you have this, right? You have Congress has habit of first abusing me, then EVM says Modi, Gujarat not filling up 0.5 million posts, 5 lakh posts, as most will go to STs, Dalits, OBCs, Kharge, making a point, we'll give it back to anyone who abuses BJP, says Hardik. Now look at this, Hardik is a real turncoat, right? And what does Modi have to say further? He says BJP is trust, PM slams opposition as Gujarat enters final leg of polls, and he really does have a problem. And here is what Dinesh Vora says, makes a point. Electoral bonds sold in March 2018 but printed the previous month only. That means they knew this was going to happen. 163 crores or 90% of the 167 crores went to the BJP. That says a lot, folks, and how it ties up with all this illicit money that's been created in Gujarat. He says now politics is also being controlled by mafia, and that, folks, is extremely dangerous. I am not saying it, that's Dinesh Vora saying it. सहमत होते माना, क्योंकि जब देखते हैं तो हमारे साथ होते हैं, पर वो बहुत हमसे सहमत भी होते हैं। उन्होंने सुमन फोन किया, फिर हम तो उठे 7 साढ़े 7 तो हमने वापस फोन किया, मैंने कहा क्या था? बोले मेरे भाई दफड़ा है, क्या है? कह रहे हैं कि अच्छा वो सज्जन की मैं थोड़ी पहचान नाम दिए वगैरह दूंगा, वो जो है वो एक कच्छ में जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े पदाधिकारी है, उनके बहुत करीबी रिश्तेदार है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं हमको कि 1 दिसंबर को जब कच्छ में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल का उनका जो एक पूरा मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट के चलते जब लोगों को बूथ तक ले जाकर वोट करवाने की कोशिश की, तो लोगों ने ये कहा कि हम ये करेंगे ही नहीं, हम भैया आपको वोट नहीं देंगे। आपको मतलब वो पार्टी नहीं, आप मतलब अभी आप बोलने में बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है, पर वो मतलब भाजपा को, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, और अगर आप जबरदस्ती करोगे तब भी हम नहीं आएंगे, और हम किसी को वोट देना नहीं चाहते। तो जो भाजपा का सालों साल मतलब एवरी टर्म का जो डेडिकेटेड वोटर कच्छ का था, उसने कच्छ की 6 सीटों पर जाके कल वोट नहीं किया है। ये इट हैज कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। और जब उन्होंने पूछा तो फिर क्या मामला है, तो बोले फाइट। अब ये कह रहे हैं हमारा ये, और अब तक की जो पैटर्न रही है, गुजरात के जितने भी दर्शक यहाँ अगर जुड़े हैं तो वो मेरी बात से सहमत हो गए। अब तक की पैटर्न ये रही है कि जो पिछले 2 घंटे होते हैं 3 से 5 वाले संजय भाई, उसमें अब तक भारतीय जनता पार्टी लोगों को घर से निकाल के 20-20% वोटिंग करवाती थी। कितना पिछले 2 घंटों में 20-20% वोटिंग करवाती थी, वो नहीं हुआ है। वोटिंग मैं ये कह रहा हूं, वो वोटिंग नहीं हुआ है। इसको समझिए, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कोई, ये सिंपल सी बात, ये अब तक का ट्रेंड है और ये नहीं हुआ है। तो इसमें क्या हमसे नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग तय हो गया है कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। 24 साल के बाद एक गैर गांधी कांग्रेस की कमान संभालेगा। कांग्रेस उसका कमान उस समय संभालेगा जब कांग्रेस के अंदर G23, G23 एक गुट बन गया था असंतुष्ट लोगों का। लोग नाराज थे, लोग कह रहे थे कांग्रेस पैर कुल्हाड़ी पे जाके मार दे रही है, और कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव पे जो नाटक चल रहा था उससे लोग बड़े कंफ्यूज थे। और कांग्रेस ने जिसने भी ये गेम प्लान किया, मैं तो इसलिए 100% कहूंगा कि ये गेम प्लान था, क्योंकि सब उसमें उलझ के रह गए आखिरी दिन तक। जब हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। इसी मिट्टी को तो अपने हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को ही हिंदुस्तान कहते हैं। इंदौर को कवियों की और शायरों की धरती कहा जाता है। पहले इंदौर का नाम भगवान इंद्रदेश महादेव के नाम पर इंदिरापुर था, जिसको बाद में बदलकर इंदौर कर दिया गया। वातावरण भी शांत है, हर चीज शांति से है, यहाँ के लोग भी बहुत दिल खुश रहती है। यहाँ की जब आप सड़कें देखोगे, इतनी साफ सुथरी सड़कें मैंने अपने जीवन में हमारे देश में तो नहीं देखी है। यहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो भाषा है, उसमें जो मिठास है, और यहाँ पर हमेशा मोहब्बत का पैगाम ही लेकर इंदौर चलिए। इसको मिनी मुंबई कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं,
और देश की जो मिनी फाइनेंशियल कैपिटल भी इंदौर को कहा जाता है। महंगाई, लाचारी और किसी को बोलने का अधिकार नहीं, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। जो राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा करके आपस में जो नफरत है उसको मिटा के प्रेम से रहें, यही मैसेज हम भारत जोड़ो यात्रा से पूरी दुनिया में दे रहे हैं। हमारा नाम लक्ष्मी कौरव है और वर्तमान में मध्य प्रदेश आशा संयुक्त श्रमिक संघ में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य संभाल रहे हैं। आशा के रूप में काम करना शुरू किए थे। उस टाइम हमें इतना पर्याप्त समय था हमारे पास कि हम अपने घर परिवार की देखरेख कर सके। कर्मचारी के रूप में हमारा उपयोग किया जा रहा है, तो हमें कर्मचारी बना दिया जाए, हमें वो न्यूनतम वेतन दिया जाए, जिसके कारण घर परिवार चल सके। हमारा काम है कि हम अपने समुदाय को कुपोषण से बचाएं, एनीमिया होने से बचाएं, लेकिन हम इतना कार्य में व्यस्त हैं, दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं कि हम खुद ही कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, हम उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहे। लॉकडाउन में सर हम आशा वर्कर ने कितना काम किया, उसके कारण से WHO ने भी सर हमारा सम्मान किया, लेकिन हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार हमारा नाम तक नहीं लेती, जबकि लॉकडाउन में घर पे रहने वाली महिलाओं को 500 रुपए दिए। हम लोगों ने फील्ड में काम किया, अगर हमारे लिए कुछ है। केंद्र सरकार की ओर से 66 रुपए प्रतिदिन पर आशा वर्कर को घर से बाहर काम के लिए मजबूर किया जाता है और पल पल पर ये दबाव कि हम आपको नौकरी से हटा देंगे। आपका न्यूनतम वेतन नहीं पा रहे, आपका फंड नहीं पा रहे, आपकी पेंशन नहीं पा रहे, तो फिर हमें हटाने का आपके पास अधिकार भी कहां से आया। हमारे मध्य प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार है, वहां हम जब भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जाते हैं या अपनी बात करने के लिए जाते हैं तो हमें जेलों में डाल दिया जाता है। हम इस 16 महीने के आंदोलन में 13 बार गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हमारा ज्ञापन आज तक मुख्यमंत्री जी ने न लिया है न सुना है। हम ये चाहते हैं सर, 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो श्रम सम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित किया था कि आशा कर्मियों को योजना कर्मियों की तरह अभी ग्रेजुएटी फंड बीमा इसका सबका लाभ दिया जाएगा, तो वो सर लागू किया जाए। राहुल गांधी जी ने आज जो बात कही है, जो उन्होंने जो व्यक्तित्व दिखाया है, उससे हम लोग प्रभावित हैं। भारत जोड़ो यात्रा से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि देश का हर एक व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े और इसे सफल बनाए। So I ask you then, is Gujarat now the latter-day Colombia? Perish the thought, but thought it is, right? If this all comes out to be true. On the other hand, the yatra is growing great guns, is drawing a lot of emotions, and Rahul seems to have directly gone ahead and challenged the whole concept of Hinduism that's been created by the RSS about Hindutva. And the key differences are interesting between Jai Shri Ram and Jai Siya Ram. Jai Siya Ram is a softer connotation because it has Sita, Siya, and Ram, that is Ram. And on the other hand, Jai Shri Ram is just Ram. That means taken Sita out and suggests total Manuha. But on the other hand, the confidence of the Congress in Gujarat shows. It's really funny. They've said they're going to win 55 seats exactly, and they have named those seats. And I'm sure, and then the other, because of the surety of what they have, or at least seems the image that they give, is that they've gone and announced that their chief minister is going to be an OBC, great game changer, and 3 deputy chief ministers possibility, one would be SC, one would be Dalit, and the other would be an Alpsankhyak, a Muslim. That's kind of really, really interesting play, because in the second section in the north, this is going to swing in anywhere out of the balance seats. Last time they had 140, so if they were 55 in the first time, in the first charan, and in the second charan, they only need what, 55? They just need 37 seats to make the government. But if they get 40, 45 like they did last time, they just might breach 100, folks. Yatra continues to do really well, and that's important. And you know, I'm saying this in jest, but this is basically what's come out of this conversation that people are not picking up on, and analytics that people are picking up on this lower vote share. That's really, really, as they say, neend nahi aa rahi hamare bosses ko tumko. 3 cheers, folks. We live to fight another day. Let's see what happens. 3 cheers and Jai Hind. क्या कह रहे हैं? भाजपा को वो सामान लगाकर सब कह देगा। अभी किसानों का है और गरीबों का है। गरीब बहुत परेशान हो गए, कोई भी खाना भी नहीं खा सकता, एक टाइम का रोटी नहीं मिलता है। अभी जब ये इलेक्शन आए ना, जब वो राशन का बटा दिया, तुमको 2 किलो में वो देगा, 2 किलो में घर में 3 आदमी होगा, खाना खाएगा 1 महीने में। धीरे धीरे तो काम होगा ना, कहाँ से धीरे धीरे होगा? काम की बात करें, कौन से काम की बात करें? 27 साल में कौन से काम किए वो बताओ। विकास वो पागल हो गया, मिल भी नहीं रहा है। 27 साल में युवाओं को 5 साल में कितने पेपर कांड हुए, एक को भी सजा मिली, मोरबी में इतनी बड़ी पुल दुर्घटना हुई है, एक को भी। तस्वीरें हो जाती है कि जब वोट डाल करके आए हो, दिखाइए जरा वोट डाल करके आए और जब मुद्दे गिना रहे इतने प्रखर होकर के।
ये विकास की बात करें, कौन सा विकास ढूंढने पर मिल नहीं रहा है। गैस का भाव 1100, पेट्रोल 100 रुपए, डीजल 100 रुपए, बेरोजगारी कितनी है, युवाओं को देखो तो सही। और जो रोड की बात करें, कौन सा रोड 200 मीटर नहीं चल सकते, उतने रोड पे खड्डे हैं। खड्डा ही खड्डा, सुरेंद्र नगर तो पूरा खड्डे में ही है। सुरेंद्र नगर में खड्डे नहीं है, खड्डे में सुरेंद्र नगर है। ये भाजपा का विकास है। और गुजरात को कैसे देखते हैं? गुजरात की भी वही हालत, अब कहीं भी जाओ, छोटा आदमी को पूछो, वो कहीं भी किसी भी जगह सेटिस्फाइड नहीं है।